ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਸੈਲਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ। सीएम चन्नी ने संबोधन दौरान पत्नी नूं मंच ते बुलाया तां भावुक होए मिसेस चन्नी। सीएम बोले, मेरी थां जे इह लड़न चोण तां खुशी खुशी करांगा घर दा काम। जित दे लई केजरीवाल ने चंडीगढ़ वासियों नूं कहा शुक्रिया। अपने कौंसलरां नूं पार्टी छड्ड के ना जाण दी चुकाई सौं। बोले, चंडीगढ़ियां ने दिल्ली दे काम देख के पाईआं वोटां। कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਨਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀ ਚੋਣ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। न्यूज़ 18 ਤੇ बीजेपी ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਬੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ। ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਸਦੀਕ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। पंजाब दे विच सियासी अखाड़ा हुण दिन ब दिन भखदा जा रहा है जिवें जिवें इलैक्शन नेड़े आ रहे ने। ते मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अज तुहानूं दिखावांगे 4 तस्वीरां दे जरिए कि वख-वख थावां दे उत्ते किस तरीके दे नाल खूब सरगर्मियां रहियां ने। चमकौर साहब दे विच पहुंचे होए सन अपने हलके च मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने अपने हलके चमकौर साहब तो आशा वर्करां ते मिड डे मील वर्करां दे लई वड्डे ऐलान कीते। मुख मंत्री ने आशा वर्करां दा माण भत्ता वधा के 2500 ते मिड डे मील वर्करां दा माण भत्ता 2500 तो वधा के 3000 रुपए महीना कर दिता। उधर हुशियारपुर दे विच सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल ते बसपा उम्मीदवारां दे हक दे विच प्रचार कीता। सुखबीर ने विधान सभा हलका शाम 84 दे विच बसपा उम्मीदवार दे हक दे विच रोड शो कढिया। उधर अरविंद केजरीवाल भी पंजाब दौरे ते ने। चंडीगढ़ दे विच केजरीवाल ने 14 जेतू कौंसलरां दे नाल जेतू मार्च कढिया। विक्टरी मार्च चंडीगढ़ दे विच कढिया गया ते फिर ट्रांसपोर्टरां दे धरने दे विच भी केजरीवाल शामिल होए। उधर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने सनौर हलके दे विच कांग्रेस आगू हैरी मान दे हक दे विच रैली कीती। सिद्धू ने कहा कि बेशक उन्हां दे कोल किसी नूं टिकट देण दा अधिकार नहीं, पर वो हैरी मान दे हक दे विच जरूर खड़े ने। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। दिन की शुरुआत यह कही कि पंजाब दौरे की नवे साल वाले दौरे की शुरुआत अरविंद केजरीवाल की चंडीगढ़ तो हुई। विक्टरी मार्च के जरिए
ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 35 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 35 ਵਾਰਡਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਖੂਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਰਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 14 ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ईश्वर की कसम खाता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों की तन, मन और धन से पूरी तरह सेवा करूंगा। जो विश्वास चंडीगढ़ के लोगों ने मुझ पे किया है उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना किसी को गलत काम करने दूंगा। आम आदमी पार्टी मेरी मां के समान है। चंडीगढ़ के लोग मेरा परिवार है। चंडीगढ़ के लोगों ने मेरी पार्टी और मुझे वोट देके जो भरोसा किया है इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं कभी आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कभी भी मेरे चंडीगढ़ परिवार से और आम आदमी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूं तो चंडीगढ़ के लोग मेरे को दोबारा वोट मत देना। आज मैं पूरे चंडीगढ़ के एक एक नागरिक का मैं अपनी बात पहले उससे शुरू करना चाहूंगा कि जब 2013 में सबसे पहले दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार। उस 49 दिन की सरकार में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था भ्रष्टाचार 49 दिन की सरकार में। कैसे खत्म हुआ? आप लोगों को याद होगा, जैसे ही हमारी सरकार बनी मैंने ऐलान किया था कि अगर कोई किसी से रिश्वत मांगे, कोई भी अफसर, तो मना मत करना। अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और वो रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। 49 दिन के अंदर मैंने 32 अफसर जेल भेजे थे। और उस टाइम दिल्ली में करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। कोने कोने में बात फैल गई कि बड़ा सख्त मुख्यमंत्री आया है, किसी की नहीं सुनता, कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता। दिल्ली में पंजाब से बहुत ट्रक आते हैं, तो जो पंजाब से ट्रक आया करते थे उनको जो रिश्वत देनी पड़ती थी हर ट्रैफिक लाइट पे, बॉर्डर पे, उन्होंने देखा कि रिश्वत खत्म हो गई दिल्ली के अंदर, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उन्होंने वापस आके पंजाब में बताया
लोगों को बताया कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार बनी है, वहां पे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है। और आज ट्रक वालों ने जो पंजाब में वापस आके बताया, उसका नतीजा था कि अगले लोकसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने हमें 4 MP की सीट दी थी। उनको लगा ये सरकार बड़ी शानदार है। जैसे ही हमारी दोबारा सरकार बनी, तब तक केंद्र में मोदी जी आ चुके थे। मेरी एंटी करप्शन ब्रांच जो थी, उस एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए, जिसके जरिए मैंने 32 अफसरों को जेल भेजा था, मोदी जी ने वो मेरी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। आपको पता है दिल्ली सरकार के पास पूरी शक्तियां नहीं है और हमारी सरकार की काफी सारी पावर छीन ली। अभी मुझे कुछ साथियों ने बताया कि बॉर्डर पे 5 नंबर वाले तंग करते हैं और भी कई सारी समस्याएं हैं। मेरी पावर हो या ना हो, मैं तो सड़क का आदमी हूं। अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है हमारी। हमें इनसे काम कराने के लिए पावर की जरूरत नहीं है, बिना पावर के इनसे काम करा लेते हैं हम लोग। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आप में से कुछ लोग मेरे पास आ जाएं, दिल्ली आ जाएं। मैं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों को बुला लूंगा। जो भी आपको दिल्ली से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, वो उसको वहीं मौके पे हम समाधान कर देंगे, उसकी चिंता अब आते हैं पंजाब की समस्याओं पे। मैं आज राजनीति करने नहीं आया, मैं आपका छोटा भाई बन के आया हूं। अभी मेरे को कहा जा रहा था कि ट्रांसपोर्टरों की 13 करोड़ वोट है, 20 लाख वोट है। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आपके मसलों का समाधान कर पाऊं अगर, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। पुण्य का काम है। अगर किसी का रोजगार छिन रहा है, किसी की रोजी रोटी छिन रही है, किसी के घर का चूल्हा बंद हो रहा है, अगर मैं किसी के रोजगार वापस दिला सकूं, तो ऊपर वाला हमारे साथ है। वोट तो अपने आप आ जाएंगे, वोट की चिंता हम नहीं करते। मैं राजनीति करने भी नहीं आया। आप लोग जिसको भी वोट दोगे, मर्जी से दोगे, अच्छी वोट दोगे, मेरे को पता है। और जो भी जीतेगा अच्छी सरकार चलाएगा, ये भी मेरे को पता है। मैंने आपकी सारी मांगे पढ़ ली और ये सारी मांगे हमें मंजूर है। आपने लिखा है ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर बीच में कोई ठेकेदार 120% उसको मिलता है और वो सारा पैसा रख के आपको 40-50% देता है, तो ये तो गलत बात है। आपका जायज हक है, बिचौलिए के पास पैसा नहीं जाना चाहिए। आपने लिखा है ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ओवरलोडिंग की वजह से आप लोगों को नुकसान होता है, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपने लिखा किलोमीटर पॉलिसी लागू होनी चाहिए, बिल्कुल लागू होनी चाहिए। किलोमीटर पॉलिसी हम बिल्कुल हक में हैं। कोविड के समय में आप लोगों को रोजी रोटी बंद हो गई थी, उसकी वजह से जो ड्यू बनते हैं वो सारे माफ होने चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे सरकारों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि व्यापारी और ट्रक ऑपरेटर के बीच में तकरार है। हमें तकरार खत्म करनी है। व्यापारी की भी रोजी रोटी चलानी है, ट्रक वालों की भी रोजी रोटी चलानी है। व्यापारी की रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो ट्रक वाले की भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ट्रक वाले की रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो व्यापारी की भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि आप सब लोग खुशी से अपना अपना काम कर सकें। ट्रक वाले भी काम करें, व्यापारी भी काम